Good evening, friends. So today here is a small lecture on neurocognitive disorders. I am Dr. Sumit from Department of Psychiatry, Government Medical College, Surat. So first of all, neurocognitive disorders. So neurocognitive disorders, also called as dementia. So dementia refers to a disease process which is marked by progressive cognitive impairment in clear consciousness. So it does not refer to low intellectual functioning, that is mental retardation. So mental retardation और dementia किस तरीके से we can differentiate कि जो mental retardation होता है it occurs during the developmental period, that is before 18 years, and there occurs cognitive deficit which is static. And dementia represents a decline from a previous level of functioning. यानी कि dementia जो बीमारी है, जो neurocognitive disorder है, ये मतलब जीरियाट्रिक पॉपुलेशन में होता है, जिसमें मतलब पहले पेशेंट जो था उसका जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग था वो नॉर्मल था और नॉर्मल फंक्शनिंग के बाद उसका धीरे धीरे कॉग्निटिव डिक्लाइन हुआ. जबकि मेंटल रिटार्डेशन जो होता है दैट इज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उसमें मतलब उसका पहले से ही जो कॉग्निशन है वो पुअर है. डिमेंशिया इन्वॉल्व्स मल्टीपल कॉग्निटिव डोमेन्स, उसके 6 डोमेन्स होते हैं जो अभी हम देखेंगे. एंड इट कॉजेज सिग्निफिकेंट इंपेयरमेंट इन सोशल एंड ऑक्यूपेशनल फंक्शनिंग. The critical clinical points of dementia are the identification of the syndrome and the clinical workup of its cause. The disorder can be progressive or static, यानी कि बढ़ रहा है या रुका हुआ है. It can be reversible or irreversible. For example, in hypothyroidism or iron or folic acid deficiency, अगर जो underlying cause है वो हम उसको treat कर देते हैं तो फिर it will become reversible. The potential reversibility of dementia is related to the underlying pathological condition and the availability and application of effective treatment. Around 15% of the people with dementia have reversible illness if treatment is initiated before irreversible damage takes place. तो शुरुआत का जो टाइम होता है न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर में, उस टाइम में मतलब if we are able to diagnose this illness in early days, तो उस टाइम पे मतलब it can be reversed. Epidemiology, 5% in the general population older than 65 years of age, यानी कि जनरल पॉपुलेशन में 65 years of age के ऊपर मतलब 5% people suffer from dementia, और वही मतलब इंसिडेंस बढ़ के 85 years के ऊपर it gets increased to 20 to 40%, क्योंकि जितना ज़्यादा एज होता है तो कॉग्निटिव डिक्लाइन उतना बढ़ते जाता है. 15 to 20% OPD practices and 50% in chronic care facilities. Of all the patients with dementia, 50 to 60% have the most common type of dementia, that is Alzheimer's. तो जो Alzheimer's है, that is the most common type of dementia. The second most common is vascular dementia, which is related to cerebrovascular disease. उसका most common cause hypertension है. Vascular dementia account for 15 to 30% of all dementia cases. इसके अलावा दूसरे भी reasons होते हैं, जैसे कि हेड ट्रॉमा, अल्कोहल रिलेटेड डिमेंशिया, वेरियस मूवमेंट डिसऑर्डर रिलेटेड डिमेंशिया, हंटिंगटन, पार्किंसन एटसेट्रा. तो ये जो बाकी के हैं मतलब वो दे आर रेयर कॉजेज. जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो है अल्जाइमर, सेकंड इज वेस्कुलर एंड थर्ड इज मिक्स टाइप, जिसमें दोनों मतलब साथ में होता है. स्लाइड शो डायरेक्ट किससे? तो एटियोलॉजी में मोस्ट कॉमन इज अल्जाइमर, उसके बाद वेस्कुलर और थर्ड इज मिक्स्ड टाइप. इसके अलावा जो दूसरे कॉजेज है दे कैन बी लाइक डीजेनरेटिव डिमेंशिया में अल्जाइमर, फ्रंटोटेम्पोरल, पार्किंसन, लुई बॉडी, फार्स डिजीज, प्रोग्रेसिव सुप्रान्यूक्लियर पैल्सी विच इज समवॉट सिमिलर टू पार्किंसन. उसके अलावा मिसलेनियस में दूसरे जो कॉजेज होते हैं हंटिंगटन कोरिया, विल्सन्स, मेटाक्रोमेटिक लिपोडिस्ट्रोफी, न्यूरोएकेंथोसाइटोसिस. साइकेट्रिक कॉज में सूडो डिमेंशिया, जिसके बारे में आज हम थोड़ा देखेंगे. फिजियोलॉजिकल कॉज में नॉर्मल प्रेशर हाइड्रोकेफेलस. मेटाबॉलिक कॉज विच आर जनरली रिवर्सिबल, जिसमें विटामिन डेफिशिएंसी, उसमें भी विटामिन B12 एंड folic acid deficiency. Endocrine में hypothyroidism, that is also it is the most common reversible cause of dementia. इसके अलावा chronic metabolic disturbances like uremia, where tumors like meningioma or metastatic breast or lung cancer,
ट्रॉमेटिक कॉज में डिमेंशिया प्यूजिलिस्टिका जो बॉक्सर्स में देखने को मिलता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिमेंशिया, सबड्यूरल हिमेटोमा। इन्फेक्शियस कॉज में प्रायन डिजीज, that is Creutzfeldt-Jakob disease, bovine spongiform encephalitis, Gerstmann-Straussler, AIDS, syphilis. Cardiac causes में infarction, Binswanger disease, hemodynamic insufficiency. Demyelinating cause में multiple sclerosis, other drugs and toxins like alcohol, heavy metals like lead, pseudodementia due to medications like anticholinergics and carbon monoxide. First of all, dementia of Alzheimer type. ये तो final diagnosis of Alzheimer disease requires a neuropathological examination of brain. Nevertheless, dementia of the Alzheimer type is commonly diagnosed in the clinical setting after other causes have been ruled out. Genetic factors में इसका strong genetic relation होता है. जो concordance rate है वो for monozygotic twins it is around 43% and for dizygotic twins is around 8%. And 40% of the patients have a family history of dementia, of Alzheimer type. 3 chromosomes that are involved are 1, 14 and chromosome number 21. Neuropathology में there occurs diffuse atrophy of cortical sulci. The sulci become flattened and enlarge cerebral ventricles. The classic and pathognomonic microscopic findings are senile plaques, neurofibrillary tangles and neuronal loss, synaptic loss and granulovascular degeneration of the neurons. Neurofibrillary tangles are not unique to Alzheimer's disease. They also occur in other illnesses like Down syndrome, dementia pugilistica, Parkinson dementia complex, etc. Senile plaques, also referred to as amyloid plaques, they are more specific for Alzheimer, but they can also be seen in Down syndrome. Neurotransmitter में the most common neurotransmitter that is involved in Alzheimer is acetylcholine. उसके अलावा others are acetylcholine, norepinephrine, etc. जो acetylcholine और norepinephrine है, both are hypoactive in Alzheimer's disease. Hence, there occurs specific degeneration of cholinergic neurons in the nucleus basalis of Meernet in persons with Alzheimer's disease. Decreased acetylcholine and choline acetyltransferase concentrations occur in the brain. Choline acetyltransferase is the key enzyme for the synthesis of acetylcholine. तो choline acetyltransferase कम हो जाता है तो जिसके कारण acetylcholine भी अपने आप कम हो जाता है. Additional support for the cholinergic deficit hypothesis comes from the observation that cholinergic antagonists such as scopolamine and atropine, which decrease the cholinergic content in the brain, they cause cognitive disabilities, whereas cholinergic agonists like physostigmine and ericoline, they increase the cognitive abilities. Other theories are like one is there it occurs because of the abnormality in the regulation of membrane phospholipid metabolism, which results in membranes that are less fluid and more rigid. The other theory regarding Alzheimer's disease is related to aluminium toxicity. Aluminium toxicity has also been hypothesized to be a causative factor because high levels of aluminium have been found in the brains of some patients with Alzheimer's. Second is vascular dementia. The primary cause of vascular dementia, formerly referred to as multi-infarct dementia. It is presumed to be multiple areas of cerebral vascular disease which result in a symptom pattern of dementia. It is more common in men, especially those with pre-existing hypertension or other cerebrovascular risk factors. The disorder affects primarily small and medium-sized vessels, which undergo infarction and produce multiple parenchymal lesions spread over wide areas of the brain. Binswanger disease, which is a subcortical arteriosclerotic encephalopathy, it is characterized by the presence of many small infarctions of the white matter that spare the cortical regions. The third is the frontotemporal dementia, which is also called as the Pick's disease. It is characterized by preponderance of atrophy in the frontotemporal region. These regions also have neuronal loss, gliosis, and neuronal Pick bodies, which are masses of cytoskeletal elements. The cause of Pick's disease is unknown, but the disease constitutes about 5% of all the irreversible dementia. Pick's disease is difficult to distinguish from dementia of the Alzheimer type. Though in the early stages of Pick's disease, there occurs more of personality and behavioral changes with relative
preservation of other cognitive functions, and it typically begins before 75 years of age. तो जो अल्जाइमर डिजीज होता है तो उसमें मतलब उसको फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया से इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, इट इन्वॉल्व्स फ्रंटल लोब, और फ्रंटल लोब इज रिलेटेड टू बिहेवियरल प्रॉब्लम्स. तो इसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं शुरुआत के टाइम में एज कम्पेयर टू अल्जाइमर. अल्जाइमर में मेमोरी प्रॉब्लम्स शुरुआत में ज़्यादा होंगी और इसमें बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगे. और फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया है, इट कंपेरेटिवली स्टार्ट्स एट एन अर्ली एज. Features of Kluver-Bucy syndrome, which includes hypersexuality, hyperorality. These symptoms are more common in Pick's disease than in Alzheimer disease. बाकी के जो डिमेंशिया है they will be covered in next lecture. उनको मैं बस ऊपर से superficially कवर करूँगा कि लुई बॉडी डिमेंशिया है. लुई बॉडी डिमेंशिया में पेशेंट्स जो होते हैं उनको फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ अटेंशन एंड अलर्टनेस देखने को मिलता है. उसके अलावा रिकरेंट विजुअल हेलुसिनेशंस एंड पार्किंसोनियन फीचर्स आर मच मोर कॉमन. तो लुई बॉडी डिमेंशिया है उसमें पार्किंसोनियन फीचर्स दैट इज ट्रेमर्स, रिजिडिटी और ब्रेडिकाइनेसिया, ये जो ट्रायड होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है. इसके अलावा हेलुसिनेशंस, उसमें भी विजुअल हेलुसिनेशंस. और इसके अलावा जो डिल्यूजन, कुछ डिल्यूजन्स होते हैं विच आर मोर कॉमन इन लुई बॉडी डिमेंशिया, लाइक delusions of misidentification, Capgras, Frigoli, etc. Huntington disease. Huntington disease is subcortical type of dementia. कोई भी सबकॉर्टिकल टाइप ऑफ डिमेंशिया होता है तो उसमें मोटर इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होता है. ठीक है, तो देयर आर मेनली टू सबकॉर्टिकल टाइप ऑफ डिमेंशिया विच आर इंपॉर्टेंट. वन इज हंटिंगटन एंड सेकंड इज पार्किंसन. ठीक है, तो दोनों में साइकोमोटर, इसमें हंटिंगटन जो कोरिया है इसमें मतलब साइकोमोटर स्लोइंग देखने को मिलती है. और जो इसमें मेमोरी प्रॉब्लम्स होते हैं वो मतलब थोड़ा लेट स्टेज में शुरू होंगे. ठीक है ना, तो इस तरीके से दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्टिकल एंड सबकॉर्टिकल टाइप ऑफ डिमेंशिया. तो जो कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है उसमें लैंग्वेज प्रॉब्लम्स, मेमोरी प्रॉब्लम्स, कैलकुलेशन, जो ऊपर के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जल्दी कॉर्टिकल डिमेंशिया में अफेक्ट होंगे. लेकिन जो बाकी के सिम्टम्स है विच आर रिलेटेड टू आवर मोटर पार्ट, ठीक है, तो वो सारे के सारे सब कॉर्टिकल डिमेंशिया में ज्यादा अफेक्ट होंगे. लाइक मोटर स्पीड एंड कंट्रोल, एडवेंटिशियस मूवमेंट्स, कोऑर्डिनेशन. तो ये सब चीजें हैं वो सब कॉर्टिकल डिमेंशिया में अफेक्ट होंगी. और जो भी सब कॉर्टिकल डिमेंशिया होता है इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू डिप्रेशन. ठीक है, तो हंटिंगटन कोरिया है, उसी तरीके से पार्किंसन है, तो इनमें डिप्रेसिव फीचर्स ज्यादा देखने को मिलते हैं एज कम्पेयर टू कॉर्टिकल डिमेंशिया. पार्किंसन है, इट इन्वॉल्व्स बेसल गैंग्लिया. The slow movements of persons with Parkinson disease are paralleled in the slow thinking of some affected persons. ठीक है ना, जिस तरीके से पार्किंसन का पेशेंट स्लोली काम करता है उसकी थिंकिंग जो होती है वो भी उसी तरीके से स्लो हो जाती है, जिसको ब्रेडीफ्रेनिया कहते हैं. Diagnosis and clinical features. The diagnosis of dementia is based on clinical examination, including a mental status examination and information from the patient's family, friends, and employers. Complaints of a personality change in a patient older than 40 years suggesting a diagnosis of dementia should be carefully considered. See, this is the DSM-5 criteria for major neurocognitive disorder. ठीक है, तो उसमें ABCD करके 4 पॉइंट्स हैं. First is evidence of significant cognitive decline from a previous level of performance in one or more cognitive domains. तो 6 डोमेन होते हैं which are complex attention, executive function, learning and memory, language, perceptual motor और social cognition. तो इन सब cognitive domains में previous level of performance से ज़्यादा cognitive decline होना चाहिए, which is based on concern of the individual himself or herself. Or secondly, a substantial impairment in cognitive performance which is documented by some tests. The cognitive deficits interfere with independence in everyday activities. That is at a minimum requiring assistance with complex instrumental activities. यानी कि complex जो activities होती है of daily living such as paying bills or managing medications, तो इन सब में उसको problem होने लग जाए. Thirdly, the cognitive deficits do not occur extensively in the context of delirium. The patient should not be delirious.
वो मतलब एक तरह से उसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस जिसके बारे में अभी हम देखते हैं. And fourth, the cognitive deficits are not better explained by any other mental disorder like MDD, schizophrenia. जैसे schizophrenia, MDD जितनी भी psychiatric illnesses होती है उसमें भी मतलब cognitive decline देखने को मिलता है. लेकिन जो ये cognitive deficits देखने को मिल रही है, it is not explained by any other mental disorder. जो specifiers है, वो सारे के सारे जो हमने अभी थोड़ा पढ़ा वही सब है कि Alzheimer, frontotemporal dementia, Lewy body, vascular traumatic brain injury, substance और medication induced, Parkinson, Huntington, etc. बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको जब ये डिमेंशिया शुरू होता है तो उसके साथ ही साइकोटिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं. ठीक है, उनको हेलुसिनेशंस या मूड डिस्टर्बेंस या एजिटेशन या बिहेवियरल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. तो इसके दो स्पेसिफायर होते हैं. विदाउट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस यानी कि द पेशेंट हैज ओनली प्रॉब्लम रिलेटेड टू मेमोरी एंड कॉग्निशन, और दूसरा है विद बिहेवियरल डिस्टर्बेंस यानी कि पेशेंट जो है उसको साथ में साइकोटिक सिम्टम्स या मूड डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, एपैथी और साथ में और कोई बिहेवियरल सिम्टम्स है. एंड थर्डली दूसरे जो स्पेसिफायर्स होते हैं माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर. अकॉर्डिंग टू द MMSE वी कैन ग्रेड देम एज माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर. माइल्ड में मतलब डिफिकल्टीज इन इंस्ट्रूमेंटल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लाइक हाउस वर्क, मैनेजिंग मनी. मॉडरेट में डिफिकल्टीज विद बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग लाइक फीडिंग, ड्रेसिंग. खुद के कपड़े नहीं पहन पाता है पेशेंट, ठीक है ना, खुद खाना नहीं खा पाता है, पेशाब संडास करने में भी मतलब उसको किसी की मदद लगती है, तो वो मॉडरेट. और फुल्ली डिपेंडेंट यानी कि सीवियर यानी कि द पेशेंट बिकम्स फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी केयर गिवर. तो डिमेंशिया में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं. जो हमने सबसे पहले देखा कि मेमोरी प्रॉब्लम्स तो होते ही है, लेकिन उसके साथ ही और क्या क्या चीजें हो सकती है. तो फर्स्ट इज पर्सनैलिटी. चेंजेस इन पर्सनैलिटी ऑफ अ पर्सन विद डिमेंशिया आर स्पेशली डिस्टर्बिंग फॉर द फैमिली. जो पर्सनैलिटी चेंजेस होते हैं वो ज्यादा फ्रंटल लोब इन्वॉल्वमेंट में देखने को मिलते हैं. तो फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया जो है उसमें मतलब पर्सनैलिटी चेंजेस ज्यादा देखने को मिलेंगे. सेकेंडली हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूशंस. So 20 to 30% of patients with dementia, primarily patients with dementia of Alzheimer types, have hallucinations, and 30 to 40% have delusions, primarily of a paranoid or persecutory and unsystematized nature. जो स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट होता है उसमें जो delusions होते हैं they are more systematized, लेकिन यहाँ पे because of the cognitive decline जो उनके delusions होते हैं they are more unsystematized. Mood. In addition to psychosis and personality change, depression and anxiety are major symptoms in about 40 to 50% of patients with dementia. और उसमें जैसा बताया है कि सब कॉर्टिकल डिमेंशिया अगर है तो उसमें लाइक हंटिंगटन, कोरिया या पार्किंसन, तो उनमें ये मूड फीचर्स लाइक एंजाइटी एंड डिप्रेशन आर मोर कॉमन. कॉग्निटिव चेंज. In addition to the aphasia in patients with dementia, apraxia and agnosia are also common. अदर न्यूरोलॉजिकल साइंस, जो भी न्यूरोलॉजिकल साइंस है ये ज्यादातर वेस्कुलर डिमेंशिया में देखने को मिलता है. अदर न्यूरोलॉजिकल साइंस दैट कैन बी एसोसिएटेड विद डिमेंशिया आर सीजर्स, सीन अप्रॉक्सीमेटली इन 10% ऑफ पेशेंट्स विद डिमेंशिया ऑफ अल्जाइमर एंड 20% विद वेस्कुलर. तो न्यूरोलॉजिकल साइंस कैन बी सीन इन बोथ बट मोर कॉमन इन वेस्कुलर. प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो मोर कॉमन इन पेशेंट्स विद वेस्कुलर डिमेंशिया. Patients with vascular dementia may have also additional neurological symptoms like headache, dizziness, faintness, weakness, vocal neurological signs, etc. Now, pathology, physical findings and laboratory examination. A comprehensive laboratory workup must be performed when evaluating a patient with dementia. The purpose of the workup is to detect reversible causes of dementia and to provide the patient and family with a definitive diagnosis. The evaluation should follow informed clinical suspicion based on the history and physical and mental status examination results. The continued improvements in brain imaging techniques, particularly MRI, PET scan, SPECT, has helped in differentiating between different dementias. An active area of research is the use of single photon emission, that is SPECT, to detect patterns of brain metabolism in various types of dementia. So SPECT can be used in differentiating different types of dementia based on differences in metabolism in different parts of brain in different dementias.
A general physical examination is a routine component in the work of dementia. It may reveal evidence of कोई भी systemic cause अगर involved है तो. For example, enlarged liver and hepatic incap, दोनों मतलब they can be correlated. ठीक है ना. उसी तरीके से detection of Kaposi sarcoma, for example, should alert the clinician to the probable presence of AIDS. तो उस तरीके से HIV related dementia patient को हो सकता है. Course and prognosis. The classical course of dementia is an onset in the patient's 50s or 60s with gradual deterioration over 5 to 10 years leading eventually to death. ठीक है. तो जो कोर्स है नॉर्मली 50s या 60s में, यानी कि जीरियाट्रिक एज पॉपुलेशन में शुरू होता है और धीरे धीरे इवेंचुअली इंक्रीज होते जाता है. कॉग्निटिव डिक्लाइन. The age of onset and the rapidity of the deterioration vary among different types of dementia and within the individual diagnostic categories. The average survival expectation for patients with dementia of the Alzheimer type is approximately 8 years. तो average survival is 8 years. एक बार patient को diagnose हुआ Alzheimer तो उसका survival 8 years तक रहता है with a range of 1 to 20 years. Data suggests that in persons with an early onset of dementia or with family history of dementia, the disease is likely to have a rapid course. Family history is strongly positive. तो उसमें जो डिक्लाइन होगा कॉग्निटिव डिक्लाइन वो ज्यादा रैपिड होगा. आफ्टर डिमेंशिया इज डायग्नोज्ड, patient must have a complete medical and neurological workup because 10 to 15% of all patients may have reversible kind of dementia. ठीक है. तो उसमें कोई भी पेशेंट आता है तो उसमें जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें उसी तरीके से हम फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी या आयरन या थायराइड ये सब भी करवाते ही हैं क्योंकि ये सारे रिवर्सिबल कॉजेज है और जितना जल्दी पता चलेगा उतना जल्दी मतलब the illness can be reversed. A gradual onset of symptoms is most commonly associated with dementia of Alzheimer's disease, vascular endocrinopathies, brain tumors and metabolic disorders. तो जो अल्जाइमर, वेस्कुलर डिमेंशिया, एंडोक्राइनोपैथीज, ब्रेन ट्यूमर्स और मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है उसमें ग्रेजुअल ऑनसेट होता है. लेकिन अगर हेड ट्रॉमा है या कार्डियक अरेस्ट है या सेरिब्रल हाइपोक्सिया है या कोई इनकेफ्लाइटिस है तो उसमें एकदम से सडन ऑनसेट ऑफ डिमेंशिया होगा. Symptom regression is certainly a possibility in reversible dementia. Dementia caused by hypothyroidism, normal pressure, hydrocephalus, brain tumors after treatment is initiated. So these are reversible causes. ठीक है ना. तो इसके लिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डायग्नोसिस पता चलना जरूरी होता है. तो हाइपोथायरॉयडिज्म, नॉर्मल प्रेशर, हाइड्रोकेफलस, ठीक है ना. इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया, जैसे प्रेशर कम होगा तो अपने आप डिमेंटिक सिम्टम्स चले जाएंगे. The course of dementia varies from a steady progression. तो अल्जाइमर डिजीज जो होता है उसमें स्टडी प्रोग्रेशन देखने को मिलता है और जो वेस्कुलर डिमेंशिया है उसमें इंक्रीमेंटली वर्सनिंग डिमेंशिया, यानी इसको स्टेप लेटर पैटर्न भी बोलते हैं कि जो डिमेंशिया है वो बहुत तेजी से बढ़ता है. और तीसरा होता है स्टेबल डिमेंशिया, यानी कि वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, मतलब स्टेबल ही रह रहा है. वो हेड ट्रॉमा में देखने को मिलता है. जिस तरीके से जो अभी तक हमने पढ़ा डिमेंशिया, दैट इज अ मेजर कॉग्निटिव डिसऑर्डर. अभी एक नया डोमेन जो आया है दैट इज माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, आल्सो कॉल्ड एज एमसीआई. सो एमसीआई एक तरीके से अगर सोचने जाए तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो है वो जो हमारा सेनाइल एजिंग होता है और जो डिमेंशिया है दोनों के मतलब बीच का है. ठीक है ना. तो इसमें मतलब क्या है कि जो डिमेंशिया का पेशेंट होता है जब एक बार सीवियर हो जाता है तो उसको पता नहीं चलता है कि उसको तकलीफ है, लेकिन शुरुआत के टाइम पे मतलब पेशेंट कैन फील कि हाँ मतलब मुझे थोड़ा मेमोरी प्रॉब्लम हो रहा है. तो वो उस टाइम को या उस टेन्यूर को हम बोल सकते हैं कि दैट्स अ पीरियड ऑफ माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. और माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट में अगर कोई डिसीजन नहीं लिया गया तो द पेशेंट मे गो इनटू मेजर कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट. तो इसमें क्या होता है कि प्रिजर्व्ड बेसिक एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग. ठीक है ना. इसमें क्राइटेरिया में क्या क्या होता है. फर्स्ट इज मेमोरी कंप्लेंट. तो पेशेंट खुद बोलेगा कि उसको सिर्फ मेमोरी कंप्लेंट्स हो रहे हैं. दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसमें कॉग्निटिव फंक्शन उतने ज्यादा अफेक्ट नहीं हुए होते. सो देयर इज प्रिजर्व्ड जनरल कॉग्निटिव फंक्शन. जबकि जो डिमेंशिया था तो उसमें दैट इज मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, उसमें मतलब कॉग्निशन डल हो जाता है. इसमें डल नहीं हुआ है. इसमें मतलब पेशेंट से इतना बोल रहा है कि अभी मुझे मेमोरी प्रॉब्लम शुरू हो गए.
देयर आर इंटेक्ट एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, तो डेली लिविंग की जो एक्टिविटीज होती है उसमें भी उसको उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है. लास्ट पॉइंट इज द पेशेंट इज नॉट डिमेंटेड. ठीक है ना, तो पेशेंट को भी डिमेंशिया हुआ नहीं है. However, at this time there are no international diagnostic criteria for MCI. अभी the cognitive continuum describes the subtle pathway from age-related cognitive decline to MCI to dementia. For this model, there is an overlap at both ends of MCI, which indicates that it can be quite challenging to identify the transition points. For example, इसमें जो बीच वाला है वो mild cognitive impairment है, that is MCI. अब जो ऊपर वाला है वो नॉर्मल एजिंग है और नीचे वाला अल्जाइमर है. तो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है वो दोनों के साथ, दैट इज नॉर्मल एजिंग और अल्जाइमर दैट इज मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, दोनों के साथ ओवरलैप कर रहा है. तो अगर डिफरेंशिएट करना हो तो किस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है उसमें मतलब पेशेंट को अभी डिमेंशिया नहीं हुआ है, मतलब उसमें कॉग्निटिव डिक्लाइन चालू नहीं हुआ है. देयर आर प्रिजर्व्ड कॉग्निटिव फंक्शंस, सिर्फ मेमोरी प्रॉब्लम हो रहा है. अल्जाइमर जो हुआ है मतलब दैट इज मेजर कॉग्निटिव डिसऑर्डर, तो उसमें मतलब पेशेंट को डिमेंशिया भी हो गया है. और जो सबसे ऊपर वाला है दैट इज नॉर्मल एजिंग, उसमें मतलब नॉर्मल एजिंग यानी कि उसकी एज और एजुकेशन के हिसाब से जो नॉर्मल मेमोरी प्रॉब्लम्स जो देखने को मिलती है वही, बाकी कुछ नहीं. ठीक है ना. जो लास्ट पॉइंट है, डिफरेंशिएटिंग एमसीआई फ्रॉम अ एज रिलेटेड कॉग्निटिव डिक्लाइन रिसर्च मेनली ऑन न्यूरो psychological testing showing a cognitive decline more severe for age and less education. जो MCI और अल्जाइमर के बीच में डिफरेंशिएशन है उसमें मतलब फंक्शनल इम्पेयरमेंट का. Course and prognosis. The typical rate at which MCI patient progresses to Alzheimer is 10 to 15% per year and it is associated with progressive loss of function. जो MCI है वो एक साल में 10 to 15% लोगों में मेजर कॉग्निटिव डिसऑर्डर में चेंज हो सकता है. तो इसके लिए इसको भी आइडेंटिफाई करना इम्पोर्टेंट है. However, several studies have indicated that the diagnosis is not stable in both directions. Patients can either convert to Alzheimer or revert back to normal. तो जो MCI है, it is kind of reversible type. तो उसको अगर जितना जल्दी हम पकड़ पाए तो उतना जल्दी उसको रिवर्स कर सकते हैं. डिफरेंशियल डायग्नोसिस. तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में सबसे पहले अल्जाइमर और वेस्कुलर डिमेंशिया में अगर डिफरेंशिएट करना हो तो फोकल न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स जो होते हैं दे आर मोर कॉमन इन वेस्कुलर डिमेंशिया, जैसा हमने अभी देखा था. ठीक है ना. और जो वेस्कुलर डिमेंशिया होगा उसमें मतलब सर्टन रिस्क फैक्टर्स होंगे जो मतलब कॉमन है. मतलब इस तरीके की हिस्ट्री होगी, द पेशेंट इज नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होगा. ठीक है ना. कार्डियोवास्कुलर रिस्क फैक्टर्स मतलब ज्यादा होंगे. डेलेरियम. डेलेरियम क्या होता है? इट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय रैपिड ऑनसेट, ब्रीफ ड्यूरेशन, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट, फ्लक्चुएशन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डे. ठीक है ना. तो डेलेरियम जो होता है उसका ऑनसेट जो होता है वो रैपिड होता है और जो ड्यूरेशन होता है वो भी कम होता है, इट्स फॉर ब्रीफ ड्यूरेशन. कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में फ्लक्चुएशंस होते हैं. ठीक है ना. कभी नॉर्मल हो गया पेशेंट, फिर उसके बाद फ्लक्चुएट हो गया, वापस डिक्लाइन हो गया कॉग्निशन. तो पूरे दिन में उसका जो कॉग्निशन है ऊपर नीचे होता रह सकता है. नॉक्टर्नल एक्सर्बेशन ऑफ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ सेंसरी डिप्राइवेशन. मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ द स्लीप वेक साइकिल एंड प्रोमिनेंट डिस्टर्बेंस इन अटेंशन एंड परसेप्शन. तो जो अटेंशन और परसेप्शन में जो डिस्टर्बेंस है वो भी डेलीरियम में ज्यादा देखने को मिलता है, उतना कॉमन नहीं होता है डिमेंशिया में, अटेंशन और परसेप्शन में प्रॉब्लम. तो दीज आर द डिफरेंसेस कि डिमेंशिया जो है ऑनसेट इज स्लो, डेलीरियम में इट इज रैपिड. ड्यूरेशन डिमेंशिया एक बार शुरू हो गया तो इट में कंटिन्यू फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स. डेलीरियम ज्यादा से ज्यादा वीक्स में चलता है. अटेंशन इज प्रिजर्व्ड इन डिमेंशिया वेयर इज इट डिक्रीज्ड इन डेलीरियम. ना. फिर डिप्रेशन और डिमेंशिया को डिफरेंशिएट करना भी इम्पोर्टेंट है. तो जो डिप्रेशन में द पेशेंट कम्स विद अ कंप्लेन कि मुझे कुछ याद नहीं रहता है. ठीक है ना. दैट इज कॉल्ड एज सूडो डिमेंशिया जो हम बोल रहे थे अभी. ठीक है ना. द क्लिनिकल पिक्चर इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज सूडो डिमेंशिया, ऑल्दो द टर्म डिप्रेशन रिलेटेड कॉग्निटिव डिसफंक्शन इज प्रीफरेबल एंड मोर डिस्क्रिप्टिव. तो इसमें मतलब पेशेंट खुद कंप्लेन लेकर आता है कि मुझे याद नहीं रह रहा और मैं चीजों को भूल जाता हूँ, जबकि नॉर्मली जो
अल्जाइमर या मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर का पेशेंट है, वो कभी खुद ऐसी कंप्लेंट्स लेकर नहीं आएगा कि मुझे कुछ याद नहीं रह रहा। और क्लिनिकली भी अगर हम डिप्रेशन के पेशेंट को कोई चीज पूछेंगे तो वो मतलब उस चीज का आंसर इस तरीके से देगा कि मुझे याद नहीं है, मुझे याद नहीं है। लेकिन न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर हुआ है पेशेंट को, कोई मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर, तो वो एटलीस्ट ट्राई करेगा, ठीक है ना। उसको अगर पूछा कि तुम्हारे कितने बच्चे हैं, तो वो मतलब बोल रहा है कि मेरे, भले ही गलत बोल रहा है लेकिन ही विल ट्राई, मतलब वो उसको याद नहीं है। लेकिन डिप्रेशन में मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि मुझे यही नहीं पता कि मेरे बच्चे कितने हैं। थर्ड थिंग इज एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स। तो एमनेस्टिक डिसऑर्डर्स क्या होते हैं? दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय मतलब इनेबिलिटी टू क्रिएट न्यू मेमोरीज। तो ठीक है, तो कोई भी नई मेमोरी बनाने में उनको प्रॉब्लम होती है। मतलब जो मेन प्रॉब्लम है दैट इज एमनेसिया। एमनेसिया यानी कि प्रॉब्लम इन मेमोरी, बाकी उतना कोई कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं है। जो मेजर न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर्स थे उसमें मतलब ओवरऑल कॉग्निटिव डिक्लाइन था, लेकिन इसमें उतना कॉग्निटिव डिक्लाइन नहीं है, लेकिन सिर्फ मेमोरी प्रॉब्लम। तो उसके भी अलग अलग कॉजेज हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन जो अल्कोहलिक्स में देखने को मिलता है दैट इज थायमिन डिफिशियंसी से वर्नाइटिस एन्केफेलोपैथी, दैट इज रिवर्सिबल, और उसको अगर टाइम पे ट्रीट नहीं किया तो इट में गो इनटू कोर्साकॉफ साइकोसिस। इसके अलावा अदर कॉजेज आर हाइपोग्लाइसीमिया, अदर ब्रेन कंडीशंस लाइक सीजर्स, ट्रॉमा, सेरिब्रल ट्यूमर्स, सर्जिकल प्रोसीजर्स, इनकेफेलाइटिस, हाइपोक्सिया, ट्रांजिएंट ग्लोबल एमनेसिया, ईसीटी से भी एमनेसिया होता है। ये एंट्रोग्रेड रेट्रोग्रेड दोनों होता है, एंट्रोग्रेड ज्यादा होता है। सब्सटेंस रिलेटेड कॉजेज, अल्कोहल यूज डिसऑर्डर, न्यूरोटॉक्सिन्स, बेंजोडाइजेपिन्स एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें मतलब एमनेसिया करवा सकती है, ठीक है। देन कम्स द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फर्स्ट थिंग इज वेरिफिकेशन ऑफ द डायग्नोसिस, ठीक है ना। तो एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाना चाहिए कि पेशेंट को डिमेंशिया ही है। तो इसके लिए मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MMSE, अलग अलग स्केल्स आते हैं विच कैन बी यूज्ड। Accurate diagnosis is imperative because the progression may be halted or even reversed if the appropriate therapy is provided, ठीक है ना। तो जो भी कॉज है उसको ट्रीट करना इंपॉर्टेंट है। अब हर एक का अलग कॉज होता है। अगर रिवर्सिबल डिमेंशिया है, द पेशेंट है हाइपोथायरॉइडिज्म, तो उसको थायराइड की जरूरत है, थायरोक्सिन चालू करने की जरूरत है। तो जितना जल्दी हमें पता चलेगा उतना जल्दी वो ठीक होगा। प्रिवेंटिव मेजर्स आर इंपॉर्टेंट, particularly in vascular dementia. Such measures might include changes in diet, exercise, control of diabetes and hypertension. So फार्माकोलॉजिकल एजेंट्स और मतलब जो भी फार्माकोथेरेपी हम करते हैं वो तो सारे के सारे डिमेंशिया के लिए सेम है, लेकिन वेस्कुलर डिमेंशिया के लिए एडिशनली एंटी हाइपरटेंसिव्स, एंटी कोगुलेंट्स, एंटी प्लेटलेट्स जो भी है उस हिसाब से उसको देने की जरूरत है। तो बाकी के रिस्क फैक्टर्स कंट्रोल में रहेंगे तो डिमेंशिया अपने आप कंट्रोल में आएगा। ब्लड प्रेशर कंट्रोल शुड एम फॉर द हायर एंड ऑफ द नॉर्मल रेंज, ठीक है ना। तो 130/80 है, तो जो भी नॉर्मल रेंज है उसके हायर एंड को पकड़ना है, बिकॉज दैट हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड टू इम्प्रूव द कॉग्निटिव फंक्शंस इन पेशेंट्स विद वेस्कुलर डिमेंशिया। Blood pressure below the normal range has been demonstrated to further impairment the cognitive functions in patients with dementia. The choice of antihypertensive is also important because beta blockers जब देते हैं it is associated with exacerbation of the cognitive impairment, ठीक है ना। तो beta blocker देने से cognitive impairment ज्यादा हो। So ACE inhibitors and diuretics they are preferred. They have not been linked to exacerbation of the cognitive impairment, and also they are thought to lower the blood pressure without affecting the cerebral blood flow, which is presumed to be correlated with cognitive function. फार्माकोथेरेपी में फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी पेशेंट को सिम्टम्स है, कि हमने देखा कि दो मेन स्पेसिफायर्स है, विद बिहेवियरल डिस्टर्बेंस और विदाउट बिहेवियरल डिस्टर्बेंस। बिहेवियरल डिस्टर्बेंस में कुछ भी हो सकता है कि उसको मूड चेंजेस, फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसको बिहेवियरल डिस्टर्बेंस इन द फॉर्म ऑफ साइकोटिक सिम्टम्स, स्लीप डिस्टर्बेंस जो भी है, तो उसके लिए वी में प्रिस्क्राइब बेंजोडाइजेपिन्स फॉर इंसोम्निया एंड एंजाइटी, antidepressants for depression, antipsychotic drugs for delusions and hallucinations, but they should be aware of possible idiosyncratic drug effects in older people, ठीक है ना। कि जो पेशेंट्स होते हैं वो, अभी कोई पेशेंट है उसको भी ज्यादा बेंजो दिया या ज्यादा कोई
एंटीसाइकोटिक दिया, तो हर एंटीसाइकोटिक में थोड़ा एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रहती है. तो एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज जो होती है दे मेक पेशेंट मोर प्रोन फॉर डेलीरियम. ठीक है ना. तो उसको उसके कारण कंफ्यूजन या इंक्रीज सेडेशन, ये सारी तकलीफें रह सकती है. तो इंक्रीज सेडेशन से ही फ्रैक्चर्स के चांस भी बढ़ जाते हैं. इन जनरल ड्रग्स विथ हाई एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी शुड बी अवॉइडेड. उसके अलावा जो मेन ड्रग्स दैट आर यूज्ड फॉर डिमेंशिया दे आर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. ठीक है. तो कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर में जनरली व्हाट वी यूज आर डोनेपेसिल, रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, टेक्रिन. टेक्रिन इज नॉट यूज्ड नाउ बिकॉज ऑफ हेपेटिक टॉक्सिसिटी, वो ज्यादा करता है. माइल्ड टू मॉडरेट कॉग्निटिव इंपेयरमेंट में ये ड्रग्स ज्यादा यूज होते हैं. डोनेपेसिल 5 मिलीग्राम से वी कैन स्टार्ट एंड 1 महीने के बाद इट कैन बी इंक्रीज अप टू 10 मिलीग्राम. उसके अलावा रिवास्टिगमिन, गैलेंटामाइन, दे आर द अदर कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर. ठीक है ना. तो ये एसिटाइल कोलिन ट्रांसफरेज जो होता है उसकी डेफिशिएंसी होती है अल्जाइमर में, तो उसके कारण क्या हो रहा है, एसिटाइल कोलिन कम बन रहा है. तो ये जो है कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स ये क्या करते हैं, दे इंक्रीज एसिटाइल कोलिन. और जब भी एसिटाइल कोलिन इंक्रीज होगा तो कॉग्निटिव डिक्लाइन जो है वो इम्प्रूव होगा. So they reduce the inactivation of the neurotransmitter acetylcholine and thus potentiate the cholinergic transmitter, which in turn produces an improvement in memory and goal-directed thought. These drugs are most useful for persons with mild to moderate memory loss who have sufficient preservation of basal forebrain cholinergic neurons to benefit from augmentation of the cholinergic neurotransmission. ठीक है. तो ये mild to moderate type of dementia में ज्यादा हेल्पफुल है. क्यों? क्योंकि उसमें cholinergic neurons पहले से है जिनके ऊपर ये सारे ड्रग्स काम कर सकते हैं. लेकिन जब डिमेंशिया बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दैट इज मॉडरेट टू सीवियर टाइप, तो उसमें कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स ही नहीं रहते. तो बाद में ऐसा हो सकता है कि ये ड्रग्स ज्यादा काम ही ना करे. तो उसके लिए हमें दूसरा मैकेनिज्म पकड़ना पड़ेगा. ठीक है ना. तो जिसके लिए मेमेंटीन यूज होता है. ठीक है. मेमेंटीन इज एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, वो भी आएगा. डोनेपेसिल इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ड्रग. ठीक है ना. इट इज गिवन ओडी 5 मिलीग्राम. टेक्रिन अभी नहीं करते यूज बिकॉज ऑफ हिपेटोटॉक्सिसिटी. लास्ट पॉइंट दैट इज मेमेंटीन प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन फ्रॉम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ग्लूटामेट, दैट इज इट इज एनएमडीए, दैट इज ग्लूटामेट एंटागोनिस्ट. सो दिस ड्रग इज also combined with donepezil. तो moderate to severe type of dementia हो तो उसमें हम donepezil के साथ mementin को दे सकते हैं. Other drugs being tested for cognitive enhancing activity include general cerebral metabolic enhancers, calcium channel blockers, serotonergic agents. Some studies have shown that salicyline, that is a MAO-B inhibitor, may also slow the advance of this disease. Ondansetron, a 5-HT3 receptor antagonist, is also under investigation. Estrogen replacement therapy may reduce the risk of cognitive decline in postmenopausal women. However, more studies are needed to confirm this effect. Complementary and alternative medicines, studies of ginkgo biloba and other phytomedicinals are required to see if they have a positive effect on cognition. And lastly, vitamin E का भी कुछ रोल देखने को मिला. ठीक है ना. तो these are the other things that can be used and which are under trial, like MAO-B inhibitors, ondansetron, estrogen replacement therapy, ginkgo biloba is a plant extract. और लास्टली विटामिन ई. साइकोसोशल थेरेपीज में जो शुरुआत का टाइम होता है दैट इज अ माइल्ड कॉग्निटिव इंपेयरमेंट जो हमने पढ़ा एमसीआई. तो उसमें मतलब पेशेंट एज अ इनसाइट कि उसकी जो कॉग्निटिव डिक्लाइन है वो मतलब द पेशेंट इज हिमसेल्फ अवेयर ऑफ इट. तो उसके लिए मतलब उस टाइम पे डिप्रेसिव फीचर्स ज्यादा देखने को मिल सकते हैं. द डिटेरियोरेशन ऑफ द मेंटल फैकल्टीज हैज significant psychological meaning for patients with dementia. The experience of a sense of continuity over time depends on the memory. ठीक है. उसके अलावा जो कुछ चीजें हैं ये psychosocial interventions या non pharmacological management that can be tried in patients with dementia is first is daily activity scheduling. ठीक है ना. जो भी patients होते हैं, जो मेन प्राइमरी केयर गिवर है पेशेंट का, तो वो क्या कर सकता है कि डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग, यानी कि जो भी पेशेंट है उसके लिए मतलब एक टाइम टेबल बना सकता है. एंड दैट टाइम टेबल कैन बी फॉलोड एवरी डे. क्योंकि कॉग्निटिव डिक्लाइन हो गया है पेशेंट को, तो उसको उतना समझ नहीं आएगा कि क्या करना है. वो ऐसा हो सकता है कि चीज़ों को भूल जाता है.
तो अगर एक ही टाइम टेबल हर दिन फॉलो होगा तो उसको उतनी ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी कि हर दिन क्या करना है क्या नहीं करना है. दूसरी चीज़ इज टैगिंग डिफरेंट थिंग्स एट होम. फॉर एग्जाम्पल बाथरूम है, वॉशरूम है, उसके बाद बड़ा सा टैग लगा दिया कि ये बाथरूम है, ठीक है ना, ये वॉशरूम है. तो वो अगर उन चीज़ों को देखेगा तो उसको अपने आप मतलब याद आएगा कि हाँ मुझे भी यहाँ पे ये वॉशरूम करने की जगह, या दूसरी ये संडास करने की जगह. तो चीज़ों को टैग किया जा सकता है, ठीक है ना. उसके अलावा बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस जो होते हैं पेशेंट को, उसके लिए मतलब द प्राइमरी केयर गिवर शुड हैव इनसाइट अबाउट दिस इलनेस. उसको मतलब हर चीज़ अपने ऊपर नहीं ले लेनी है कि ये जो भी पेशेंट जो भी उसके बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है वो मतलब जानबूझ के कर रहा है. तो उसको मतलब अगर केयर गिवर को इंसाइट आएगी कि इसके सिम्टम्स के बारे में, तो उसका बर्डन, जो केयर गिवर बर्डन है, वो अपने आप कम हो जाएगा. Psychodynamic interventions with family members of patients with dementia may be of great assistance. Those who take care of a patient struggle with feelings of guilt, grief, anger, exhaustion as they watch a family member gradually deteriorate. A common problem that develops among caregivers involves their self-sacrifice in caring for a patient. बहुत बार ऐसा होता है कि प्राइमरी केयरगिवर को ऐसा लगता है कि मैं पेशेंट के लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तब भी ये जो मेरी मम्मी है उनका कॉग्निटिव डिक्लाइन होते ही जा रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है. तो वो सब जो भी गिल्ट है, जो भी तकलीफ है, वो अपने ऊपर ले लेती है कि शायद मेरे में ही प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ अपनी मम्मी को ठीक. तो ये चीज को, बीमारी को समझना जरूरी है. द ग्रेजुअली डेवलपिंग रिसेंटमेंट फ्रॉम दिस सेल्फ सैक्रिफाइस इज ऑफन सप्रेस्ड बिकॉज ऑफ द गिल्ट फीलिंग्स इट प्रोड्यूसेस. Clinicians can help caregivers and understand the complex mixture of feelings associated with seeing a loved one decline and can provide understandings as well as permission to express their feelings. Clinicians must also be aware of the caregiver's tendencies to blame themselves or others for patients' illness and must appreciate the role that patients with dementia play in the lives of family members. Lastly, जो कुछ vaccines हैं which are being developed, अभी these vaccines are also under trial. एंड इम्यूनाइजिंग, ये मतलब किस तरीके से एक्ट करता है. तो इसमें क्या होता है कि immunizing the body to beta amyloid could in concept not only slow or stop the progression of cognitive decline but by removal of plaques already found potentially improve the cognitive function. ठीक है ना. तो इसमें मतलब ये जो भी है ये एंटीबॉडीज है, और जो मतलब एंटीबॉडीज हम डेवलप कर रहे हैं विच आर मेनली अगेंस्ट ए बीटा पेप्टाइड. तो दीज वैक्सीन्स आर आल्सो अंडर ट्रायल ओनली. तो मेन चीज यही याद रखनी है कि इसमें प्रोग्रेसिव कॉग्निटिव डिक्लाइन होता है, जो विच इज अ डिक्लाइन फ्रॉम प्रीवियस लेवल ऑफ परफॉर्मेंस, और उसमें ग्रेजुअली मतलब पेशेंट जो होता है उसका जो डिक्लाइन है 6 डोमेन्स में होता है. अलग अलग टाइप के डिमेंशिया होते हैं, सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हमें ट्रीटमेंट शुरू करना होता है. ट्रीटमेंट में कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स एंड एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट आर द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स, और उसके अलावा नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट लाइक डेली एक्टिविटी शेड्यूलिंग, टैगिंग एटसेट्रा. थैंक यू.